this is Kamakshi and you are watching my channel Kamakshi Kammu. So guys, today I'll be explaining a topic named electrochemical cell from the electrochemistry chapter of class 12th. So first of all, what is an electrochemical cell? It is a device which is used to convert the chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. It is also known as voltaic cell or galvanic cell. So first of all, what is a redox reaction? Redox reaction is a type of reaction in which both oxidation and reduction takes place simultaneously. This will be more clear after seeing the example when zinc plus copper sulfate give rise to ZnSO4 and copper. So guys, this can also be written as Zn plus Cu2 positive because CuSO4, there is Cu2 positive and SO4 2 negative. Same as in ZnSO4. We can also write Zn2 positive plus Cu. So if we see that Zn is oxidized to Zn2 positive because there is increase in charge. So their oxidation occurs. And in Cu2 positive, there is reduction in charge and it will become Cu. So in this reaction, both oxidation and reduction taking place simultaneously. So it is called a redox reaction. The half reaction can be written as zinc gives Zn2 positive by accepting 2 electrons. So it is called oxidation half reaction. And Cu2 positive loses 2 electrons to form Cu. So it is called reduction half reaction. This will be more clear after seeing the diagram. So let's begin. Guys, this is an electrochemical cell based on the redox reaction. And the reaction is Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. So guys, this is the overall diagram of it. We have taken 2 beakers, named them A and B. In beaker A, we have placed a zinc rod, and in beaker B, we have placed a copper rod. Along with the solution, in beaker A, there is ZnSO4 solution, and in beaker B, there is CuSO4 solution. And it is connected by a wire with the help of an ammeter or a voltmeter. This is because to measure the current. And it is a salt bridge. It is an inverted U-shaped tube. It is called salt bridge, which consists of concentrated solution of an inert electrolyte like KCl, K2SO4. We will be discussing it later, the basic role of salt bridge. First of all, we will see the zinc rod. So guys, you have noticed that the copper rod is uniform along with the extra coating, but the zinc rod is not uniform. So we will be seeing the reason behind it. So guys, the zinc rod is negative and copper rod is positive because zinc has electrons but Cu2 positive is electron deficient. So zinc will give its electrons to Cu2 positive to neutralize its positive charge. When zinc rod gives its electron to Cu2 positive, it will become Zn2 positive. And the electrons will move in this direction so that Cu2 positive will gain electrons. So the reduction of Cu2 positive occurs and the copper will deposit on this rod. But at the same time, the zinc will oxidize to Zn2 positive and merges in the solution. Here the copper will deposit on the rod, but due to this there is an excess of SO4. So guys, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों आया रॉड पे? सो नेगेटिव इसलिए आया बिकॉज जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए किसको? Cu2 पॉजिटिव को इसका चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए. मींस इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया. एट द सेम केस Cu2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स लिए तो इस रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आया.
सो गाइस इलेक्ट्रॉन्स जाते रहेंगे, Cu2 पॉजिटिव उन्हें एक्सेप्ट करते रहेगा और Cu जो है वो इस रॉड पे डिपॉजिट होते रहेगा, बट साथ में जो SO4 2 नेगेटिव है वो इस सोल्यूशन में आता रहेगा और यहां से जो Zn2 पॉजिटिव है वो इस सोल्यूशन में आता रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते रहेंगे, जिसके वजह से करंट आएगा। करंट जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, बिकॉज आपको पता है कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिटली फ्लो होता है। बट गाइस कंडीशन ऐसी आएगी कि एक समय बाद ये करंट जो होगा वो धीमा पड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूशन है वो SO4 2 नेगेटिव का है और SO4 2 नेगेटिव बहुत एक्सेस अमाउंट में इधर प्रेजेंट है, जिसके वजह से एक समय बाद वो इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, बिकॉज ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, जिसके वजह से Cu2 पॉजिटिव इस पे Cu2 पॉजिटिव का जो कॉपर आएगा वो इस पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो ये कंडीशन की उससे हमारा करंट तो धीमा। सो गाइस एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो SO4 2 नेगेटिव है वो इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपेल करेगा, मतलब SO4 2 नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोकेगा, जिसके वजह से जो कॉपर है वो यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और करंट हमारा धीमा पड़ जाएगा। सो इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने एक सॉल्ट ब्रिज इन्वर्टेड यू ट्यूब हमने यहाँ पे यूज करी। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का क्या फंक्शन है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको पता है ये जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो Zn2 पॉजिटिव में होगा और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके बनाएगा Cu2 पॉजिटिव जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो वो Cu बनाएगा और इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन। आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? सो गाइस उसके लिए हम लोग थोड़ा सा थियोरेटिकल व्यू लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। इट इज एन इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब containing concentrated solution of inert electrolyte like KCl, KNO3, K2SO4, etc. Inert electrolyte do not react with the electrolyte present. Its function, इसका फंक्शन क्या है गाइस? सबसे पहले इसका फंक्शन ये है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है by allowing the flow of ions without mixing. मीन्स ये मिक्स नहीं करता, आयंस का फ्लो करता है बट ये मिक्स नहीं करता है। ऑफ द 2 सोल्यूशन मिक्सिंग नहीं होती यहाँ पे 2 सोल्यूशन की जो हमारे 2 अलग अलग बीकर में रखे हुए हैं। और दूसरा ये है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सोल्यूशन को मेंटेन करके रखता है ऑफ द हाफ सेल्स। सो वील सी हाउ इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय सीइंग द डायग्राम अगेन। सो लेट्स सी। सो गाइस हमने अभी देखा कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब SO4 2 नेगेटिव के जो आयंस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन करेंगे इनके साथ, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से करंट जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग एक इन्वर्टेड यू ट्यूब सॉल्ट ब्रिज लेंगे जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम KCl और K2SO4। अब इसका वर्क क्या है कि ये जो होगा, हमने K2SO4 लिया है यहाँ पे, तो ये K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जो SO4 2 नेगेटिव है वो इसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा और जो K पॉजिटिव है वो SO4 2 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। मींस पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे एक दूसरे के संग इंटरेक्शन करेंगे, जिसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर आकर Cu2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और रिड्यूस होकर कॉपर बनाकर इस रॉड पे डिपॉजिट होते रहेंगे। अब ये रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि जो SO4 2 नेगेटिव है वो K पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन में है और सेम जो Zn2 पॉजिटिव है वो SO4 2 नेगेटिव के साथ है। तो इस तरह से जो सॉल्ट ब्रिज है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है और करंट कंटिन्यूअसली पास करते रहता है, जिससे हमारा करंट धीमा नहीं पड़ता है। सो गाइज अभी हम देखेंगे ये कॉपर रॉड है जो कि पॉजिटिव है। अब जो पॉजिटिव है उसको हमने यहाँ बोला कैथोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और जो ये नेगेटिव रॉड है यहाँ पे है हमारा एनोड, जहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस के साथ मैस मत कीजिएगा, उसमें डिफरेंट केस चलता है, बट अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ जो कैटायंस का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है हमारा
इस डायरेक्शन में और जो मूवमेंट ऑफ एनायंस हो रहा है वो हो रहा है हमारा इस डायरेक्शन में. सो गाइज, दिस इज द ओवरऑल electrochemical cell based on the redox reaction. One more thing I want to tell is that it is a spontaneous reaction in which there is evolution of heat.